السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر کونڈا سریکھا نے طوفان سے شدید متاثرہ ضلع ورنگل کے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا۔ شدید بارش کے باعث ورنگل ایسٹ حلقے کی کئی ڈویژنوں میں کالونیاں زیر آب آ گئی۔ ان کا وزیر کونڈا سریکھا نے خود معائنہ کیا۔ ہر طرف صرف بارش اور سیلابی پانی ہی نظر آ رہا۔ انہوں نے بارش کے پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو اس سلسلے میں ہدایت دی۔ انہوں نے بارش متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ متاثرین نے انہیں بتایا کہ بارش کا پانی ان کے مکانات میں داخل ہو گیا ہے اور ان کو نقصان ہوا ہے۔ کونڈا سریکھا نے عہدیداروں کو فوری طور پر مختلف ہدایت دی۔ شدید بارش اور اس کے نتیجے میں دورناکل، ورنگل اور قاضی پیٹ یارڈز میں پانی جمع ہونے کے باعث ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے کئی ٹرینوں کو منسوخ و جزوی طور پر منسوخ کر دیا یا ان کے اوقات پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ ٹرین نمبر 17409 عادل آباد HS ناندیڑ، ٹرین نمبر 17410 HS ناندیڑ عادل آباد، یہ دونوں ٹرینیں 31 اکتوبر کو منسوخ رہیں گی۔ جزوی طور پر منسوخ کی گئی ٹرینیں ٹرین نمبر 17033 بھدراچلم روڈ بلہارا شاہ جو 30 اکتوبر کو چلائی جانے والی تھی، اسے بھدراچلم روڈ اور قاضی پیٹ کے درمیان جزوی طور پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ دوبارہ شیڈیول کی گئی ٹرینیں ٹرین نمبر 12755 کاکناڈا پورٹ بھاؤنگر ٹرمینس، ٹرین نمبر 17405 وشاکھاپٹنم سکندرآباد تروپتی عادل آباد، یہ ٹرینیں 30 اکتوبر کو دوبارہ شیڈیول کی گئی۔ SCR نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ سفر شروع کرنے سے قبل تازہ ترین اپڈیٹس ضرور چیک کر لیں۔ MBT ترجمان امجد اللہ خان کا تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کرنے والے مسلم وفد سے سوال۔ امجد اللہ خان نے مسلم وفد سے سخت سوالات کیے، جن سے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس حکومت کی تائید کا اعلان کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ جو چیف منسٹر پچھلے 2 سالوں سے کسی مسلم وفد سے ملاقات کا وقت نہیں دے رہے تھے، انہیں آج اچانک مسلمانوں کی یاد کیوں آ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب جماعت اسلامی ہند اور علماء کرام و مشائقین ریونت ریڈی سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تب شیخ ریاض انکاؤنٹر اور اس کے گھر والوں پر ہوئے ظلم کیوں یاد نہیں آئے۔ امجد اللہ خان نے تنقیدی لہجے میں کہا کہ 2 سال تک کانگریس حکومت کو مسلمانوں کی یاد نہیں آئی، اب اچانک مسلمانوں کی ہمدردی کیوں جاگ اٹھی۔ وہ علماء مشائقین جنہوں نے مسلمانوں پر اس حکومت میں ہوئے ظلم پر کبھی چیف منسٹر سے ملاقات نہیں کی، اب کیسے جوبلی ہلز میں کانگریس کو اپنی تائید کا اعلان کر رہے۔ تدفین نہیں کرنا بول کے وہاں کے مسلم خبروں کو اکھاڑ کے پھینک دیے وہاں پر، اور وہاں پر بھی جو ہے BJP کا MP جا کر یہ ٹھہر کرایا جب مسلمان احتجاج کرے تو مسلمانوں پہ کئی کیسز بک کرے، تقریباً 60-70 بچے وہاں پر اندلوائی کے پریشان ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسجد سرائی میر بول کے نارکٹ پلی میں عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ بابری مسجد کا جب اناگریشن رام مندر کا جب یہ اناگریشن ہو رہا تھا، اس سے 1 رات پہلے عشاء کی نماز مسجد کے میدان میں جو ہے وہاں پر کوئی رام سیوک لا کر وہاں پر پوجا پاٹ شروع کر دیے، مسجد پہ حملہ کر دیے، حکومت خاموش رہی۔ وہاں کے اندر مسلمان نکل کے احتجاج کرے تو ان پہ کیسز بک کرے۔ ہتنور منڈل دولت آباد سنگاریڈی میں ایک ہتنور منڈل بول کر آتا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک میوہ فروش کی دکان جلا دی ہے وہاں پر۔ کچھ ایک جلوس نکالے تھے، بالکنی میں سے کوئی ایک معصوم بچی کی چپل اڑ کے آ کے گری تو جلوس میں چپل مارے بول کے فساد کرے، کئی دکانات کو جلا دیے، الٹا مسلمانوں پہ کیسز بک کرے۔ ریونت ریڈی خاموش رہے۔ پھر آپ کو جنگی چرلا میں جو فساد ہوا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہاں پر مسجد بلال کے سامنے لا کے ہولی کے دن جو ہے مسجد وہیں بنائیں گے گانے لگا رہے تھے، بار بار پولیس کو اطلاع کرے تو پولیس روکی نہیں۔ 26 مارچ 2022 کا واقعہ۔
वक्फ बोर्ड की फाइलों की चोरी पर एफआईआर दर्ज, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के एबट्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से दायर की गई शिकायत पर नोट फाइलों की चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। वक्फ बोर्ड के एक ओहदेदार ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड के चैम्बर से नोट फाइलों को गैर मजाज तौर पर इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से हासिल करके नकल किया गया। वक्फ बोर्ड के तहसीलदार और स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर मोहम्मद आसिफ खान ने भारत नया सजा कानून BNS 2023 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत तहकीकात का मुतालबा किया। वक्फ बोर्ड का कहना है कि शिकायत दाखिल की गई थी मगर उस वक्त एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर ने भी शिकायत की तौसीक करते हुए DCP सेंट्रल जोन को जरूरी कार्रवाई की हिदायत दी थी। ताहम वक्फ बोर्ड की जानिब से एक ताज़ा याद दहानी के बाद एबट्स पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। सब इंस्पेक्टर S तिरुमल्लेश यादव ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब केस की मजीद तहकीकात सब इंस्पेक्टर N गोरेंद्र गौड़ के हवाले कर दी गई है, जिन्होंने कहा, हम इस बात की मुकम्मल जांच करेंगे कि फाइलों तक रसाई किसने और कैसे हासिल की। हम इस सिलसिले में CCTV फुटेज की भी मदद लेंगे। तूफान के तनाज़ुर में राहत और बहाली के इक़दामात के हिस्से के तौर पर जिले कलेक्टर SDRF और PR27 फंड्स इस्तेमाल करें और अगले 30 दिनों में इनकी तौसीक़ करें। इन बातों का इजहार नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने किया। उन्होंने कलेक्टरों को हिदायत दी है कि फंड्स के हवाले से कोई मसला नहीं होना चाहिए। डिप्टी CM ने कहा कि रियासत को जानी नुकसान और इमलाक के बड़े नुकसान से बचाया गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और पूरी काबीना ने 48 घंटे पहले ही सबको अलर्ट कर दिया था और सरकारी मिशनरी ने इसके मुताबिक जवाब भी दिया। डिप्टी CM ने वजाहत की कि कलेक्टर और दीगर ओहदेदार अगले 24 घंटे तक तूफान और मोनवाल के करीब रहें और राहत और बहाल के इक़दाम करें। डिप्टी CM ने कहा है कि तूफान का असर बदकिस्मती से है, क्योंकि ये जिले कृष्णा, नलगुंडा और खम्मम अजला से गुजरा, जिससे शुमाली तेलंगाना में मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। निजामाबाद में पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर बाउंसा पहाड़ी इलाके में पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की। बगैर लाइसेंस और कागजात के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चालान भी किया गया। पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना दें, वरना सरपरस्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोंगीर के रुकन असम्बली चिमला किरण कुमार रेड्डी, जो कांग्रेस के सीनियर अक़लियती लीडर और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में जगह देने से बेचैन हैं, उन्होंने ये कहते हुए झंडा बुलंद किया है कि BJP और BRS मिलकर साजिश कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तहरीक आज़ादी के बाद से ही खुलूस नीयत से काम कर रही ताकि तमाम ज़ातों और मज़ाहिब को मुत्तहिद किया जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी के सेक्युलरिज्म के साथ आगे बढ़ने के ख्याल ने मुल्क को मुत्तहिद रखा, लेकिन MP चिमला किरण कुमार ने कहा है कि सभी को ये बात नोट करनी चाहिए कि BJP जो आज मरकज में इख्तिदार में है, मज़ाहिब के दरमियान दरार पैदा करने और सियासी किस्मत बनाने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में 8 निशस्तें हासिल करने के लिए BRS के साथ किया गया अंदरूनी मुआहदा था। उन्होंने कहा है कि BJP और BRS ने इस साजिश के साथ इत्तेहाद किया कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में मरकज में बरसरे इख्तिदार ना आए और रियासत में भी इख्तिदार में ना रहे। ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కూడా ఎలాగూ మైనారిటీలు బీజేపీకి ఓటేయరు కాబట్టి మైనారిటీ ఓట్లన్నీ కూడా బీఆర్ఎస్ కి వచ్చే విధంగా బీజేపీ వైఖరి ఉన్నట్టుగా మనకి ఈరోజు తెలుస్తుంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మైనారిటీని लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने मुसलसल बिहार में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। नालंदा के बिहार शरीफ में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार और NDA हुकूमत पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों में है और आज की बिहार हुकूमत दरअसल दिल्ली और नागपुर से चलाई जा रही। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती लोग, जो मुल्क के हर हिस्से में अपनी मेहनत से तरक्की की बुनियाद डाल रहे। राहुल ने सवाल उठा
उठाया। दुबई, बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के मजदूरों के खून और पसीने से खड़ा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि यही मेहनत बिहार को क्यों नहीं बदल पाती? आखिर बिहार में क्या कमी रह गई है? राहुल गांधी ने रियासत में बार बार होने वाले पेपर लीक को लेकर एनडीए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कौमी राजधानी इलाका और इतराफ में फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की फिजा में जहरीलापन इस हद तक बढ़ गया है कि सांस लेना दुश्वार हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 से तजावुज कर गया। इस तरह दिल्ली के शहरी लगातार 17वें दिन इंतहाई खराब जुमरे की हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आनंद विहार में AQI 409, वजीरपुर में 394, अशोक विहार में 385, ITO पर 365 और IGI एयरपोर्ट इलाके में 316 रिकॉर्ड किया गया। अगरचे हवा की सिमत में मामूली तब्दीली और रफ्तार में कमी से फिजाई मियार में कुछ बेहतरी आई, लेकिन ये राहत सांस लेने को आसान बनाने के लिए काफी नहीं। माहिरीन के मुताबिक हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटे से कम होने पर आलूदगी के अनासिर ऊपर नहीं उठ पाते, जिसकी वजह से धुंध की मोटी तह बन जाती है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के नौजवान रहनुमा और रुकन असेंबली रोहित पवार इन दिनों एक अनोखे मुकदमे की जद में है। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया ताकि ये साबित किया जा सके कि मुल्क के शनाख्ती निज़ाम में कई तकनीकी कमजोरियां मौजूद हैं। ये मामला उस वक्त बहस में आया जब रोहित पवार ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजात के जरिए ट्रंप के नाम से आधार कार्ड हासिल किया। पवार ने कहा है कि उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आवाम को ये दिखाना था कि आधार जैसा हसास निज़ाम भी धोखा खा सकता है। इनके मुताबिक अगर एक गैर मुल्की सदर के नाम पर आधार कार्ड बन सकता है तो आम शहरियों का डेटा कितनी आसानी से खतरे में पड़ सकता है। ताहम उनकी इस कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदगी से लिया। बीजेपी के रहनुमा धनंजय वाग्सकर ने पवार के बयान को बुनियाद बनाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई के जुनूबी साइबर पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये दफात फर्जी दस्तावेजात बनाने, शनाख्त छुपाने, कंप्यूटर धोखाधड़ी और कौमी सलामती से मुतल्लिक खिलाफ वर्जियों से जुड़ी। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी और इस पूरे अमल में शामिल तकनीकी माहिरीन और वेबसाइट तैयार करने वालों का भी पता लगाया जा रहा। नई दिल्ली की जहरीली फिजा अब सिर्फ फेफड़ों के लिए ही नहीं बल्कि आंखों के लिए भी संगीन खतरा बन गई है। माहिरीन अमराज चश्म का कहना है कि राजधानी में फिजाई आलूदगी के बढ़ते दर्जे के सबब आंखों से मुतल्लिक शिकायत में तकरीबन 50% इजाफा देखा गया। इसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस, सफाई एहलकार और सड़क किनारे काम करने वाले मजदूर मुतासिर हो रहे, जो रोजाना तवील वक्त तक खुली फिजा में रहते हैं। धूल, धुंध और आलूदगी की मोटी तह के बाइस शहरियों को आंखों में जलन, पानी आने, खुश्की और सुर्खी जैसी तकालीफ का सामना है। डॉक्टरों के मुताबिक ये तमाम अलामात दरअसल आलूदगी से पैदा होने वाली आंखों की एलर्जी की निशानदेही करती है। एम्स में शोबे अमराज चश्म के प्रोफेसर सुदर्शन खोखर ने बताया कि अगर कोर्निया को मुसलसल आलूदगी का सामना करना पड़े तो तवील मुद्दत में इसकी साख्त मुतासर हो सकती है और बाज़ सूरतों में कोर्निया की पेवंदकारी की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। इनके मुताबिक बुजुर्ग अफराद इस असर के लिए ज़्यादा हसास हैं क्योंकि उनकी आंखों की सतह पहले ही कमज़ोर होती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान जनूबी कोरिया के शहर बोसान में तवील अरसे बाद बराह रास्त मुलाकात हुई। ये दोनों रहनुमा आखिरी बार 2019 में मिले थे और अब 6 साल बाद एक बार फिर सामने आए हैं। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज थी क्योंकि दोनों मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शुमार होते हैं और उनके दरमियान ताल्लुकात आलमी सतह पर असरअंदाज होते हैं। बोसान में होने वाली ये मुलाकात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इजलास के मौके पर हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत, आलमी मंडी के इस्तेहकाम और सिक्योरिटी पर उमूर पर गुफ्तगू की। ट्रंप ने
मुलाकात के आगाज में कहा कि हम पहले भी कई मामलात पर इत्तेफाक कर चुके हैं और मुझे यकीन है कि आज भी कई उमूर पर हमारी बात बनेगी। उन्होंने सदर शी जिनपिंग को अजीम मुल्क के अजीम रहनुमा करार देते हुए कहा कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात तवील अरसे तक मुस्बित समत में आगे बढ़ते रहेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने भी अपने इब्तदाई बयान में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी सदर बनने के बाद उनसे 3 बार बात हो चुकी है और अब बामुशाफा मुलाकात आलमी ताउन के लिए नया बाब खोलेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।